So good morning all of you. So today we'll discuss about formation of different molecules. Okay, for how these different molecules are forming by sharing their valence electron. Okay, so we'll discuss about it. So the very first molecule that we'll take, okay, hydrogen. Okay, the simplest molecule formed in this manner is the hydrogen. Okay, hydrogen का example लेंगे हम लोग hydrogen molecule का. So hydrogen. How many valence electron hydrogen is having? One valence electron. Okay. So we want to draw the structure of this hydrogen. So we can draw it by like this. Hydrogen is having valence electron, valence electron, one valence electron. It is having one valence electron in its last orbit. Okay, so we know that different shells arrangement K, L, M, okay, N like this shell arrangement. So it is having a single one number of atomic number is one and its valence electron which is present at outermost shell is one. Okay, so एक ही इलेक्ट्रॉन है उसको तो ये कैसे शेयर करता है? Okay, so the molecule that we will discuss about H2 molecule. Okay, H2 molecule के बारे में हाइड्रोजन molecule के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे. Okay, so one valence electron. Okay, how to draw this configuration? How to draw this configuration? So we'll draw like this. Hydrogen is having one valence electron. तो ये देखो ऐसे मैंने इसको represent किया. H, okay, one dot. So what this dot is representing? It is having वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो जो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन जो ड्रॉ करते हैं ओके उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं लास्ट उसके जो ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वही हम लोग प्लॉट करते हैं. ओके तो ये प्लॉट कर लिया हम लोगों ने. बट इज इट कंप्लीट और इनकम्प्लीट? ये जो के शेल है इसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2. ओके तो पेयर करने के लिए उसको क्या चाहिए? और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए और एक हाइड्रोजन एटम चाहिए. ओके तो मैंने क्या किया यहाँ पे जो दूसरा हाइड्रोजन एटम लिया उसका कॉन्फ़िगरेशन में स्टार क्रॉस से इंडिकेट करता हूँ. ओके तो ये देखो H. ओके so what will happen right now? This will form a pair. ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ये पेयर फॉर्म करेगा. देखो अभी. ओके it is acquiring a noble gas configuration. What is the meaning of noble gas configuration? तो ये देखेंगे हम लोग क्या होता है. तो noble gas configuration, noble gas configuration. So noble gas configuration means if we have seen the noble gas के अगर आपने periodic table में अगर देखोगे आप लोग तो उनकी जो outermost shell है उनके जो outermost shell है last जो orbit है वो क्या है? It is completely filled. It is completely filled. That's why they are not that much reactive. इसीलिए उनको noble gas नाम दिया जाता है. Okay, because they are not that much reactive क्योंकि उसके जो last orbit है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है. ओके हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. तो देखो एटॉमिक नंबर 2 के शेल में 2. ओके सो लाइक दिस जितने भी हम लोग ग्लोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे ग्लोबल गैस एलिमेंट्स देखोगे उनकी जो लास्ट जो शेल है दैट आर कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन नॉट रिएक्ट दैट मच. ओके तो जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके आउटर शेल में कुछ कैपेसिटी है कि वो पेयर बना सकते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ. ओके तो दैट आर जनरली रिएक्ट. तो अभी देखो ये जो हाइड्रोजन एटम है ये पेयर बना रहा है इसके साथ. ओके ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो रहा है? ये पेयर बना रहा है इसके साथ. तो क्या हो गया? ए शेल में कितने नंबर ऑफ माने कितने आगे अभी इसमें 2 बराबर है. सो इट इज पेयरिंग. So this hydrogen molecule, okay, is pairing with another hydrogen molecule like this. This is called as a इसकी जो configuration block करना इसको बोलते हैं structure block करना इसको बोलते हैं. Now अगर इसको हम लोग bond में represent करें तो कैसे represent करेंगे? H. Okay, so this is called as the single bond. क्या मीनिंग होता है सिंगल बॉन्ड का? कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है and that are paired like this. समझ में आया आप लोगों को? That are paired like this. So this is called as the single bond. इसको बोलते हैं single bond, which is represented by
small this line, single line हम represent करेंगे. So this is called as the single bond between the hydrogen. So two hydrogen atoms share their electron to form a molecule of hydrogen. To form a molecule of hydrogen, hydrogen molecule form होता है. So the bond between this hydrogen molecule is what? A single bond. Okay, single bond. We call it as a covalent bond. We call it as a covalent bond. It is a bond between the molecules. It is a bond between this molecule. This hydrogen atom is sharing its electron with this hydrogen atom, and this hydrogen atom is sharing his electron, okay, with another. Like this, there is a pairing. आप देखोगे तो देखो ये जो सर्कल जो ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ने क्या कर रहा है, पेयर कर रहा है. Okay, it is now balanced. Okay, such kind of a configuration is called as a stable configuration. क्या है वो, stable है. Okay, single covalent bond है. So the two hydrogen atoms share their electron to form a molecule of hydrogen. So this allow each hydrogen atom to attain the electronic configuration. तो इनकी जो electronic configuration आप देखोगे तो क्या हो गया, उन्होंने acquire कर लिया है. outermost stable जो है अभी क्या हो गया, pairing हो गया. pairing हो गया. configuration of the nearest noble gas helium which has two electrons in its spaceship. आप देख सकते हो helium में क्या है, two number of electrons. Its atomic number is 2. Okay, it is having two electrons in its spaceship. तो उसने क्या कर लिया है, near about जो noble gas configuration है वो acquired कर लिया है. So we can depict this using dots or crosses to represent a valence electron. देखो यहाँ पे मैंने represent कैसे किया है, डॉट से रिप्रेजेंट किया है मैंने, एक मॉलिक्यूल को डॉट से रिप्रेजेंट किया है और दूसरे को किससे रिप्रेजेंट किया है, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है. आप कोई भी एक लेके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, समझ में आया. आप कोई भी एक लेके रिप्रेजेंट कर सकते हो, आइदर डॉट और आइदर क्रॉस. रिमेंबर this chapter is very much important. Based on this you are learning the concepts of 12th standard 11th standard both. जो भी bond formation है ये इसी के basis पे आप पढ़ते हो. Okay, that is molecule formed by sharing of valence electron. So that's why we are writing the formula of hydrogen. हम लोग कभी H लिखते हैं कैसे, क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन का बॉन्ड है with bond H2, क्योंकि वो क्या है, दोनों में पेयरिंग है. ओके, दोनों में क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. दैट्स व्हाई कितने एटम होंगे हाइड्रोजन के, दो. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एज अ H2. So the shared pair of electron is said to constitute a single bond between these two hydrogen atoms. So I have written that this is what it is constituting. It is forming a single bond. Okay, by a line between these two atoms. तो देखो two atoms हैं हाइड्रोजन के, उनके बीच में मैंने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है. अभी इस लाइन का मीनिंग क्या होता है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये आपको समझ में आना चाहिए. समझ में आया, बिकॉज अभी जो है उसके बाद में, अभी ठीक है 9th स्टैंडर्ड, अभी 10th स्टैंडर्ड में हम लोग, बाद में 11th 12th स्टैंडर्ड में वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस विद स्टार विद डॉट और क्रॉस. हम लोग नहीं ड्रॉ करते, सीधा डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करते. उस लाइन का मीनिंग आप लोगों को समझ में आना चाहिए. उस लाइन का मीनिंग ये होता है कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है. ये पेयरिंग कर रहे हैं, पेयरिंग करके स्टेबल कर रहे हैं. ओके, स्टेबल का मीनिंग क्या है, कब वो स्टेबल है, जब उसका जो आउटर मोस्ट जो शेल है, ओके, उसमें अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर हो जाता है, लाइक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मींस आउटर मोस्ट शेल में अगर तो कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, जैसे के शेल में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे अगर फिल्ड हो जाता है, so that time we can call it as it has acquired the noble gas configuration. Okay, so atomic number of chlorine is 17. What would be its electronic configuration and its valency? तो देखो अभी हाइड्रोजन का ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, अभी हम लोग क्या करेंगे, किसके लिए ड्रॉ करेंगे, क्लोरीन के लिए ड्रॉ करेंगे. सो atomic number of chlorine is 17. Now we'll draw the structure. Okay, molecule formed by sharing of electrons for chlorine. Okay, हाइड्रोजन के लिए ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, भी क्लोरीन के लिए ड्रॉ कर लिया.
Okay, so chlorine, we'll draw it for the chlorine. What is the atomic number of chlorine? Atomic number of the chlorine. So atomic number of the chlorine is 70. Okay, atomic number of the chlorine is 70. Now we will draw the its configuration. So atomic number of the chlorine is 70. What would be electronic configuration? Electronic configuration क्या है इसका? Okay, तो वो लिखेंगे हम लोग electronic configuration. Electronic configuration. What is the meaning of electronic configuration? That how these number of electrons they are split into the different shape. So देखो K, L and M बराबर है. K शेल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं. ओके 17 में से 2 चले गए. ओके देन L शेल में मैक्सिमम 8 रह सकते हैं. कितने हो गए अभी? 8 और 2 10 हो गए. बराबर. कितने बच गए अभी? 17 में से अगर 10 हो गए तो 7 बच गए. 7 किस शेल में चले जाएंगे? M शेल में चले जाएंगे. ओके अभी हमें क्या करना है? हमें दिस इज what we can say the balance of these electrons किस शेप में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. Now we will draw its structure. Okay, now we will draw its molecular structure. Okay, chlorine. How many number of valence electron? जो लास्ट वाला जो शेप है वो हमें देता है valence electrons. कितने हैं electrons? 7 है. बराबर. क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स है. देखो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे क्लोरीन. ओके 7 electrons. So 1 2 okay 3 4 okay 5 6 okay ये हो गया 7. कंप्लीट करने के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए हमें? यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है तो क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ओके ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट. और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी इस क्लोरीन को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1 number of electrons it requires to complete its octet. Okay, तो ये देखो यहाँ पे 17 एटॉमिक नंबर है. टोटल 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो देखो K शेल में 2 आ गए, L शेल में 1 आ गए. ओके 8 + 2 = 10. ओके तो कितने बचे? 7 बचे. 7 किस में आ जाएंगे? M शेल में आ गए. बराबर है. आई थिंक यू हैव स्टडीड दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 9th स्टैंडर्ड. सो लास्ट शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इज इट स्टेबल? नहीं. इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है क्या? अभी तक इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ. ये कब हो सकता है? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर हो कर ले. बराबर है. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. देखो अभी हम लोग क्या करेंगे? ये दूसरा क्लोरीन लेंगे. यहाँ पे ये दूसरा क्लोरीन लिया. इसके मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डॉट से. ये हो गया 1 2 3 4 ओके 5 6 ओके. कितने हैं क्लोरीन एटम में? 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो देखो ये 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 6. ये सपोज मान लो इसका क्या है? ये 7 इसका यहाँ पे. देखो यार. ओके लुक एट दिस. क्रॉस से और डॉट से रिप्रेजेंट किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए, ताकि प्रॉपर डिस्टिंग्विश हो. बुक में दोनों ने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है. नॉट नेसेसरी आप एक क्रॉस से कर सकते हो, दूसरा डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है. ओके तो देखो यहाँ पे क्रॉस से इंडिकेट किया मैंने ये क्लोरीन एटम के लिए, और डॉट से रिप्रेजेंट किया मैंने राइट साइड वाले क्लोरीन एटम. देखो so cross से 1 2 3 4 5 6 7 electrons are present at its outermost chain. इस क्लोरीन के लिए 1 2 3 4 5 6 and 7. ओके तो देखो पेयरिंग कैसे बना सकता है? ये क्या करेगा? ओके चाहे तो आप इसको यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है. देखो इस क्लोरीन ने अगर इसके इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लिया, हो गया क्या? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. इसका ऑक्टेट कंप्लीट. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 it has acquired a noble gas configuration. अब ये क्लोरीन क्या करेगा? ये इसके साथ पेयरिंग करेगा. ये जो एक दिखाई दे रहा है इसके साथ पेयरिंग कर देगा. हो गया क्या? इसका ऑक्टेट कंप्लीट. यस हो गया. इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. पेयरिंग हो गया. बराबर है ना? क्या हो गया? पेयरिंग हो गया. इस क्लोरीन ने क्या किया? So what is this pairing? Okay, how this bond formation takes place? So in this way the bond is formation. तो ये सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? कैसे समझ में आता है? कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया. बराबर है. इस क्लोरीन ने अपना एक 1 इलेक्ट्रॉन
उससे शेयर किया है, इस क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वन वन ही होता है बोथ साइड से, तो वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, सो नाउ वी विल रिप्रेजेंट इट विद द बॉन्ड। ओके, क्लोरीन। ओके, क्लोरीन ये अभी अभी हमने क्या किया है, उसको कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया है। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ द क्लोरीन सिंबल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस माइनस क्लोरीन ऑफ द एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द डॉट स्ट्रक्चर। ओके, इसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। ओके, नाम दे देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर, डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर, बराबर है। जो अभी रिप्रेजेंट जो मैंने ये किया है, ये क्या है, डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है। अभी मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड में रिप्रेजेंट करूंगा। ये देखो, क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उस क्लोरीन से, ए। ओके, तो दैट्स व्हाई वन लाइन, सिंगल लाइन। ओके, एंड दिस इज वन क्लोरीन। ओके, so this is called as the bond between this chlorine atom is a single bond. It is forming a single bond between this chlorine. That's why it is forming. Okay, that's why it is forming chlorine from atomic molecule. Okay, तो इसका जो मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहा है, इसका जो मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल फॉर्म क्लोरीन के दो एटम से। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, Cl। It is forming diatomic molecule। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, it is forming diatomic it is forming a diatomic molecule। Okay, it is forming a diatomic molecule। Okay, समझ में आया सब लोगों को, how the chlorine it is forming a diatomic molecule? सब लोगों को समझ में आया? Okay, so this is what drawing its dot structure। इसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। ओके, उसको बोलते हैं बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है वो ड्रॉ करना। एंड लास्टली मॉलिक्यूल हमने रिप्रेजेंट किया, क्लोरीन के मॉलिक्यूल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, Cl2, बराबर है ना। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, Cl2 से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में है सब लोगों को? हैव यू अंडरस्टूड दिस? So in this we have understood how the chlorine atom it is forming a diatomic molecule। ये क्लोरीन कैसे diatomic molecule फॉर्म कर रहा है वो हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ओके, इन केस ऑफ ऑक्सीजन और द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स, ओके, दैट वी विल डिस्कस। ऑक्सीजन के बारे में हम लोग देखेंगे। क्लोरीन देख लिया हम लोगों ने, नाउ वी सी ऑक्सीजन। So we draw for oxygen. Okay. Oxygen. What is the atomic number of oxygen? What is the atomic number of oxygen? 8। बराबर में क्या है? Yes. Atomic number कितना है? Atomic number of oxygen is 8। Okay. So now उनका configuration. Okay. What is this? Electronic configuration देखेंगे हम लोग। Okay. Electronic configuration. So it's electronic configuration। K शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने एटम्स? ओके, यल शेल में कितने आ जाएंगे, कितने बच गए उसमें से 6, बराबर है। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है, इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ वी विल रिप्रेजेंट इट विद द डॉट स्ट्रक्चर। ओके, डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट एंड द क्रॉस स्ट्रक्चर। ओके, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? So what is the valence chain? Outermost shell L, बराबर है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is present in the oxygen। Okay, so we'll draw for oxygen। Yes, O molecule oxygen, 6 number of electrons। तो ये देखो क्रॉस क्रॉस 1 2 3 4, ये ड्रॉ कर दिया। ये देखो ऑक्सीजन के लिए हमने ड्रॉ किया है 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन that is present at its outermost shell। Okay,
इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? टू कंप्लीट ऑक्टेट, दैट इज टू कंप्लीट ऑक्टेट यानी 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट ऑक्टेट टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स इट रिक्वायर्स। वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से ले सकता है? तो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से वो लेगा। ओके, सो ये देखेंगे डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये देखो, एक 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ओके, 5 and 6. Look at this. I have represented these two molecules of oxygen. इसको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, प्रॉपर्ली समझ में आए। ओके, सो लुक एट दिस 1 2 3 4 5 6 number of electrons which are present at its outermost shell for this oxygen molecule, and for this oxygen molecule 1 2 3 4 5 6 which are represented with the cross. ओके, अभी इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पेयर कर सकता है। कैसे पेयरिंग करेगा? ये देखो, ये ऐसे पेयरिंग करेगा। समझ में आया पेयरिंग कैसे करना है? तो हमें कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट, दैट वी हैव टू सी, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू फाइंड आउट ओके हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वी कैन पेयर। ओके, अभी देखो इसको कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो वो कहां से लेगा? यहां से लेगा। ओके, तो देखो उसने भी ये देखो यहां से ले लिया है और उसने भी कंप्लीट कर दिया। देखो लुक एट दिस राइट नाउ। Okay, 2 circles I have drawn. एक जो लेफ्ट साइड वाला सर्कल है, it is also completing the octet 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर कर लिया उसने। राइट साइड वाला सर्कल देखो 1 2 3 4 5 6 और ये पेयर। अभी जो पेयरिंग जो हो रहा है, ओके, तो बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है, ओके, तो किसके बीच में हो रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर रहे हैं, बराबर है ना? ये 2 इलेक्ट्रॉन उन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या कर रहे हैं? पेयर कर रहे हैं। सो क्या करना पड़ेगा हमें? complete the octet. Okay, so electrons are shared, 2 number of electrons are shared by that oxygen molecule, and to complete the octet of that oxygen molecule, this one is sharing its 2 electrons to this. Okay, so bond, how to represent it with the help of bond? Okay, bond जो form हो रहा है, bond formation, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा? देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर कर रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर कर रहा है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग उसको? देखो, जो पेयरिंग कर रहा है उसी को बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको यहाँ पे नहीं दिखाते। क्योंकि वो क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसी का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ये ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन में ये देखो 1 बॉन्ड और ये देखो। So it is forming a double bond. The oxygen it is forming a double bond between the two atoms. So it is forming bond formation double bond. Okay. It is forming a double bond. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डबल बॉन्ड? 2 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है उसका मीनिंग? उसका मीनिंग ये है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, ओके, ये शेयर कर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी ये उसको शेयर कर रहा है, उसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको शेयर कर रहा है। और हमें पता है कि लास्ट शेल में कितने हैं? 6 है। अगर 6 है यहाँ पे है, ओके, 6 इसकी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 2 इसके साथ शेयर करने के कारण क्या हो रहा है? ऑक्टेट दोनों का भी कंप्लीट हो रहा है। ऑक्टेट क्या हो रहा है? दोनों का भी कंप्लीट हो रहा है। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। दिखाई दिया सब लोगों को? समझ में आया हाउ द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज देयर? ओके, नाउ मॉलिक्यूल का कौन सा फॉर्म होता है? व्हाट इज द कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है? ये वाला। ओके, मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है दो ऑक्सीजन एटम से, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट वी राइट डाउन ऑक्सीजन। और मॉलिक्यूल जो फॉर्म कर रहा है वो क्या हो रहा है? O2 फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन। ओके, so this is about the oxygen. ये हो गया ऑक्सीजन के लिए। ओके, next can you now depict a molecule of water showing the nature of bonding between one oxygen atom and 2 hydrogen atom? ड्रॉ कर सकते हैं क्या हम लोग? यस, वाटर का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। यस, वी कैन इजीली ड्रॉ इट। ओके, आप वाटर का मॉलिक्यूल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वाटर को H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। So we'll see how they are forming the bond. Okay.
सो वाटर, वाटर के लिए भी हमें ड्रॉ करना है, डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वाटर। क्या फॉर्मूला होता है वाटर का? H2, बराबर है। क्या फॉर्मूला होता है वाटर का? H2। नाउ विल ड्रॉ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ओके, डायरेक्टली देखो, अभी जो देखा हम लोगों ने सिर्फ सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर के लिए देखा। किसके लिए देखा? ऑक्सीजन के लिए देखा, बराबर है। देन किसके लिए देखा था? हाइड्रोजन के लिए देखा था, बराबर। हाइड्रोजन के लिए देखा था और ऑक्सीजन के लिए देखा था। राइट नाउ इट इज व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें क्या है? ऑक्सीजन भी है, बराबर है। तो हम लोग ड्रॉ करेंगे अभी। तो ऑक्सीजन, for oxygen the number of electrons that are divided like what? कितने बार इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ एक नंबर ऑफ एटम्स है? ओके, 2 and 6, बराबर है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का एंड हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का क्या है? ओनली 1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नाउ वी विल ड्राइव ऑक्सीजन के लिए कितने हैं? 6 एंड यहाँ पे 1 है। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन में क्या है? 6 नंबर ऑफ है। हाइड्रोजन में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है एंड इट्स आउटर मोस्ट। चलो ड्रॉ करेंगे हम लोग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ड्रॉ करेंगे। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये देखो 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? ऑक्सीजन के लिए मैंने ड्रॉ किया है। ओके, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट इट्स आउटर मोस्ट। अभी हमने देखा। ओके, हमें उसका एटॉमिक नंबर लिखना है, उसके बाद में उनकी क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्रैक्टिस करना है आप लोगों को ये फॉर वेरियस एटम्स के लिए और वेरियस स्ट्रक्चर के लिए। ये आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो लास्ट जो शेल है, लास्ट शेल में कितने इसमें नंबर ऑफ एटम्स है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो देखिए। अभी देखो क्या करना पड़ेगा। अभी हाइड्रोजन को कहां कहां पे लिखेंगे हम लोग? राइट साइड में और लेफ्ट साइड में लिखेंगे। देखो ये देखो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ये देखो हाइड्रोजन का ये दूसरा मॉलिक्यूल। ये देखो हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा मैंने, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, बराबर है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में? ये 1 नंबर। तो देखो उसको मैं डॉट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको भी मैं क्या कर रहा हूं? ये डॉट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। समझ में आ गया? हो गया ये कंप्लीट। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, डॉट स्ट्रक्चर। क्या बाकी है इसमें भी? डॉट और वी कैन से क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अभी क्या करना है इसमें? अभी हमें सर्कल ड्रॉ करना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके साथ पेयर कर रहा है वो भी देखना है। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन लास्ट चेन के इलेक्ट्रॉन 6 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 number of electrons are present at its outermost shell। हाइड्रोजन के कितने हैं? 1 ही है, उसका एटॉमिक नंबर ही 1 है। 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग कैसे करेंगे? पेयरिंग कैसे करेंगे? हाइड्रोजन को ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं कर सकता। हाइड्रोजन क्या करेगा? उसका कौन सा शेल है? के शेल है, बराबर है। के शेल, के शेल में मैक्सिमम कितने रहते हैं? 2 रहते हैं, बराबर है। ये है उसका के शेल, ये है उसका एल शेल। एल शेल में कितने रहते हैं? 1 रहते हैं, बराबर है। 1 इलेक्ट्रॉन। देखो के शेल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को क्या चाहिए? एक और इलेक्ट्रॉन का चाहिए टू कंप्लीट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मीनिंग क्या है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का? वो कंप्लीट होता है उसका जो आउटर मोस्ट शेल है। अब इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? के शेल है। के शेल में कितना कंप्लीट होने के लिए चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो क्या करेगा? ये हाइड्रोजन इसके साथ पेयर करेगा। हो गया? जब ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ जब पेयर करेगा तो ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया पेयरिंग, बराबर है। पेयरिंग कंप्लीट हो गया। ओके, सिमिलरली ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ये इसके साथ पेयरिंग करेगा, बराबर है। ये क्या करेगा? इसके साथ पेयरिंग करेगा। ये हो गया कंप्लीट, बराबर है। बट अभी ऑक्सीजन को भी हमें क्या करना है? पेयरिंग दिखाना है। यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए क्या चाहिए? 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाते हैं तो इसका ये क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। आउटर मोस्ट शेल में 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग है नोबल गैसेस में लास्ट शेल में फिल कंप्लीटली रहते हैं, कंप्लीटली फिल रहते हैं। ओके, तो 2 चाहिए इसके। ये क्या करेगा? ये देखो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करेगा? ये इससे एक लेगा, ओके, इससे एक लेगा और ये देखो ये हो गया उसका कंप्लीट ऑक्टेट। देखो हो गया कंप्लीट इसका ऑक्टेट ऑक्सीजन का। 1 2 3 4 5 6 और ये हो 7 8।
कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। ओके, तो दिस इज व्हाट डॉट स्ट्रक्चर। नाउ बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, बॉन्ड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉन्ड, देखो तो ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन। हाइड्रो ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, हाइड्रोजन के साथ एक। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिंगल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन ने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, देखो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया। और इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। दिस इज व्हाट द बॉन्ड स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट द बॉन्ड स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द फार्मूला ऑफ वाटर एज H के कितने हैं, दो, ऑक्सीजन का कितना है, 1। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द मॉलिक्यूल। ओके, दिस इज द मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्म कॉल्ड एज अ H2O। समझ में आया सब लोगों को? ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल ये फॉर्म। नाउ वी विल फॉर्म दी अमोनिया। ओके, NH3 कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे हम। ओके, NH3 how the nitrogen is forming। Okay, nitrogen is forming, that we will see। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखेंगे हम लोग। नाइट्रोजन, what is the atomic number of nitrogen, 7, बराबर है। सो nitrogen atomic number is 7। Okay, how we can draw its electronic configuration, electronic configuration कैसे draw कर सकते हैं हम लोग इसका, electronic configuration, electronic configuration, it is a distribution of electrons in a different shape, that is what electronic configuration you have studied in 9th standard में पढ़ा हुआ है। k shape, okay, k shape में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने बचे, यल में 5 बचे, बराबर है। तो यल में कितने बचे, 5 बचे। ओके, 5 नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, so now we have to draw the, ये हो गया इसका configuration। now we have to draw the dot or cross structure, dot या फिर जो जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस स्ट्रक्चर, इसका हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, हमें नाइट्रोजन n लिखना है। नाइट्रोजन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज n। ओके, बस नीचे लिखता हूं इसको, n ऐसे लिखते हैं। देन कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में, 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं, 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 एंड 3। आप कहीं पे भी लिख सकते हो। ओके, अभी मुझे पता है कि वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसके लिए मैं वो समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। देखो यार, नाइट्रोजन कहीं पे भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि इसी साइड पे तीन ड्रॉ करना है। ओके, वो हम लोग ड्रॉ करने के बाद भी हमें समझना आता है। तो यन how many number of electrons at which is present at outermost shell, 5, 1 2 3 4 5 हो गया। ओके, तो ये वाले मैंने एक क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। अभी देखो 5 है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ओके, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सेम नाइट्रोजन के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर दूसरा मैं यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे लेता हूँ, तो दूसरा अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे ड्रॉ लेता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, ये नाइट्रोजन को यहाँ इस नाइट्रोजन एटम से 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये 1 हो गया, ये 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ओके, हो गया पेयर। और ये यहाँ पे और ये हो गया यहाँ। तो देखो आप फिर से एक बार, नाइट्रोजन के वैलेंस एटॉमिक नंबर इज 7 when they are arranged in their electronic configuration। K shell is having 2, L shell is having 5 number of valence electron। हम लोग वैलेंस जो उसमें जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं इस डॉट या फिर क्रॉस स्ट्रक्चर में। ओके, इसको ले लेते हैं हम लोग, 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, 1 2 3 4 5 for this nitrogen atom, and for this nitrogen atom 1 2 3 4
the octet for this nitrogen atom, it has to share its 3 number of electrons from the another atom. ये देखो ये उसने शेयर कर लिया है, ओके, और ये फॉर्म कर लिया उसने क्या, ऑक्टेट फॉर्म कर लिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट फॉर्म कर लिया उसने। अभी इस नाइट्रोजन को भी क्या करना पड़ेगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर पेयर करना पड़ेगा, और ये देखो उसने भी पेयर कर लिया, ये हो गया फॉर्म। कितने एटम्स, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये नाइट्रोजन उसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उसके, ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है। तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग, बॉन्ड स्ट्रक्चर, ओके, बॉन्ड स्ट्रक्चर, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर शेयरिंग विद ईच अदर, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है। देखो ये इसका एक और इसका एक, ओके, इसका एक और इसका एक और इसका एक। हाउ मच, हाउ, व्हाट इज द बॉन्ड इट इज फॉर्मिंग, इट इज द ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ओके, ट्रिपल बॉन्ड कर, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बराबर। इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट इज फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड, इट इज फॉर्मिंग अ ट्रिपल बॉन्ड, ओके। कितने नंबर ऑफ एटम से, 2 नंबर ऑफ एटम से, कैसे लिखते हैं, डायटोमिक, क्या है, डायटोमिक है, 2 नंबर ऑफ एटम से दे आर फॉर्मिंग द ट्रिपल बॉन्ड, दे आर फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गया नाइट्रोजन का, ओके, ये हो गया नाइट्रोजन का। कैन यू ड्रॉ इट फॉर अमोनिया, a molecule ammonia has the formula NH3. Can you draw the electron dot structure for this molecule showing how all 4 atoms achieve noble gas configuration? Will the molecule have a single, double or triple bond? Okay, question पूछा गया है यहाँ पे। So we'll see how this ammonia, whose formula is NH3, it is forming the bond. यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? Okay, now we'll see how this forming the bond that we will see. Okay, ये देखेंगे हम लोग उसको, अमोनिया, how this ammonia is forming the bond that we will see. Ammonia, ammonia, क्या फार्मूला है अमोनिया का, हमें पता है NH3 फार्मूला, NH3, so नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ओके, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन है, क्या एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे लिखा एटॉमिक नंबर, atomic number, atomic number for the nitrogen, atomic number for the hydrogen is 1. नाइट्रोजन के लिए कितना है, एटॉमिक नंबर 7 है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, 2 और ये है 5, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली 1, बराबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एट outermost shell 1 electron, at outermost shell the 5 number of electrons, okay, so at outermost shell it is having the 5 number of electrons. So what our aim is to draw NH3, okay, तो हम लोग अभी इसका क्या करेंगे, डॉट या फिर जो क्रॉस स्ट्रक्चर है वो पहले ड्रॉ कर लेंगे, okay, dot on the cross structure that we will draw here, N and H, हाइड्रोजन के, देखो हाइड्रोजन H के कितने हैं, 3 एटम्स है, और नाइट्रोजन का कितना है, 1, जो एटम जो कम है वो हम लोग बीच में लिखते हैं, ओके, तो हम लोग उसको मिडल में लिखते हैं, और बाकी के जो है जो उसको सराउंडिंग में लिखते हैं उसको, ओके, ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि वो जो डॉट स्ट्रक्चर है बनाने में आसानी हो जाए। तो नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 5 नंबर ऑफ, तो देखो ये एक इसके साथ शेयर हो जाएगा, ये एक इसके साथ शेयर हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, ये इसके साथ शेयर कर लेगा वो, और बचे कितने, 3 हो गए, यहाँ पे 2 बचे। देखो एक बार फिर से, नाइट्रोजन कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ओके, एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 हो गया, डॉट। नाउ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 नंबर ऑफ एटम्स है, एक मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ हाइड्रोजन का, ओके, ये एक मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और एक मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। हाइड्रोजन का कितना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट शेल में 1 है, देखो 1 डॉट, डॉट से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये हाइड्रोजन का क्या है, डॉट से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये हाइड्रोजन के लिए मैं डॉट
लुक एट दिस वंस अगेन। कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, पूछो मुझे। यू हैव एनी डाउट इन दिस? यस, कुछ डाउट है कि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के लिए मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। हाइड्रोजन को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है ताकि डिस्टिंग्विश हो। ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, आप सारे के सारे क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप सारे के सारे डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, so this hydrogen is sharing its one electron to this nitrogen and it is completing its noble gas configuration. तो ये वन है, तो अगर इसमें एक वन इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो जाता है, ये क्या हो जाता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है। सिमिलरली दिस आल्सो हाइड्रोजन इज कंप्लीटिंग इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। प्रोटॉन शेल में 2 आ गए और इसका कंप्लीट हो गया। ओके, के शेल में 2 नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, ये देखो हाइड्रोजन इज आल्सो कंप्लीट, हाइड्रोजन के लिए कंप्लीट हो गया। ओके, उनकी कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन से। ओके, इसको कितने चाहिए? 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इससे लेगा वो, इस हाइड्रोजन से लेगा, इस हाइड्रोजन से लेगा और इस हाइड्रोजन से लेगा। तो देखो कैसे पेयर फॉर्म कर रहा है वो, देखो ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये देखो ये ऐसे क्या कर रहा है? पेयर फॉर्म दिखाई दिया। ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है? इसके साथ पेयर कर रहा है, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर रहा है। वो और वो क्या कर रहा है? उसका जो ऑक्टेट है इसका नाइट्रोजन का, वो क्या कर रहा है? वो कंप्लीट कर रहा है उसका ऑक्टेट। देखो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 उसके इलेक्ट्रॉन से। ओके, 8 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक इसके साथ पेयर किया उसने 6 हो गया, इसके साथ पेयर किया 7 हो गया, इसके साथ पेयर कर दिया 8 हो गया। कंप्लीट हो गया उसका ऑक्टेट। सो दिस इज व्हाट वी डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर। तो देखेंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड कैसे वो फॉर्म कर रहा है वो देखेंगे हम लोग। देखो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन। देखो ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। सेम ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, सिंगल में। ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। देखो ये जो लाइन है, बॉन्ड जो ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये प्योरली बेस्ड ऑन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उसके बेसिस पे ड्रॉ करते हैं। अगर ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर रहा है इसके साथ, और ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो उस टाइम पे दो लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, सिमिलरली दिस नाइट्रोजन इज शेयरिंग one electron respectively to the hydrogen, okay, and this hydrogen to the nitrogen, like this. तो ये हो गया उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कंप्लीट। ओके, मॉलिक्यूल्स हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नाइट्रोजन का कितना है? एक एटम है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 एटम्स है। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट एज अ स्टेबल। ओके, these are समझ में आया कैसे ड्रॉ किया हम लोगों ने? ओके, तो NH3 अमोनिया के लिए हम लोगों ने ड्रॉ किया। ओके, so will the molecule have single, double or triple? कि कौन सा बॉन्ड है? It is having a single bond. ये मॉलिक्यूल क्या है? सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। Now let us now take a look at methane. Let us now look at the methane, which is a compound of carbon. Which is a compound of carbon. Methane is widely used as a fuel and it is a major component of biogas. बराबर, मीथेन गैस रहती है, बराबर, हमारे सिलेंडर में मीथेन गैस रहती है। compressed natural gas also. It is also one of the simplest compound formed by the carbon. Methane has a formula CH4. Okay, so we will draw the diagram for methane. Methane के लिए हम लोग draw करेंगे। Hydrogen, as you know, has a valency of 1 and carbon is the tetravalent. Okay, तो हम लोग देखेंगे ड्रॉ करेंगे हम लोग फॉर दी CH4। ओके, मीथेन के लिए ड्रॉ करेंगे हम लोग अभी स्ट्रक्चर। मीथेन, फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4। ओके, सो विल सी एटॉमिक नंबर देखेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ द डिफरेंट। कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर, इसका होता है 1 एटॉमिक नंबर। कार्बन का कितना होता है? 6, बराबर है। कार्बन का कितना है एटॉमिक नंबर? 6। इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 और ये 4, बराबर है। के शेल में 2,
इनर शेल में 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एट इज आउटर शेल। देखो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ CH4, ओके, CH4 कैसे ड्रॉ करेंगे? सो डॉट स्ट्रक्चर, डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर, दैट वी विल ड्रॉ इट फॉर फर्स्ट। पहले ड्रॉ कर लेंगे हम लोग इसका डॉट या फिर क्रॉस स्ट्रक्चर। कार्बन, ओके, कार्बन के कितने हैं? 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 है, ओके, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। ये देखो कार्बन में बीच में से लिखता हूं, ये कार्बन है, ओके। कितने बैलेंस है, कितने लास्ट इसमें इलेक्ट्रॉन्स है? 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये देखो, ये यहां पे मैंने थोड़ा सा और नीचे लिखता हूं, ये एक 1 2 3 और 4, ओके। 4 मैंने डिफरेंट साइड में इसलिए लिया क्योंकि भी हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स है, उसको मैं भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा चारों साइड में। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक इधर साइड में, H, एक हाइड्रोजन इस साइड में, एक हाइड्रोजन इस साइड में, एक हाइड्रोजन इस साइड में, बराबर है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन के? ये एक इलेक्ट्रॉन डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका एक इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका एक इलेक्ट्रॉन डॉट से। मुझे पता है इसका जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के लिए इसके के शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये पेयरिंग किसके साथ कर रहा है? कार्बन के साथ पेयरिंग कर रहा है, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर रहा है, तो ये उसकी पेयरिंग होगी, ये उसकी पेयरिंग होगी, ये उसकी पेयरिंग होगी, ओके। अभी कार्बन के कितने हैं? कार्बन के कितने हैं लास्ट शेल में? 4, 1 2 3 4, बराबर है। उसको कितनी चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को कितने चाहिए? 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करेगा? वो पेयरिंग करेगा किसके साथ? इन चारों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग करेगा। ये देखो, ये इसका एक लेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा। लुक एट दिस डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर। कार्बन ने क्या किया? 1 2 3 4 ऑलमोस्ट शेल में थे, 1 2 3 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर दिया। तो बॉन्ड्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं एक में को? ओनली सिंगल, ओके। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर विल बी व्हाट? कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। सो दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इट इज फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बराबर है। एंड द मॉलिक्यूल वी आर राइटिंग, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 4 मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 4 मॉलिक्यूल्स। And in this way we have written the molecules, okay, 4 number of molecules of hydrogen, okay, we have written. So such bonds which are formed by the sharing of electron pair between two atoms are known as covalent bonds. So जो भी अभी तक देखा हमने bond formation, that is called as the covalent bond. इनको क्या बोला जाता है? Covalent bonds. ये क्या कर रहे हैं? एक में से इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, so this bonds formation is called as the covalent bond. So covalently bonded molecules are seen to have a strong bond within the molecule, okay, within the molecules, okay, हमें क्या है दिखता है? वो strong bond है, but intermolecular forces are small, okay. So we write down the covalently bonded molecules are seen to have strong bond with the molecule, okay. So there looks to be a strong bond between the molecules, but इनमें intermolecular forces क्या होता है? Small होता है। इनमें क्या होता है? Intermolecular forces, intermolecular forces, intermolecular forces, ये क्या होता है? इनमें small होता है, okay. It looks to be a strong covalent bond, but इनमें जो intermolecular force होता है वो बहुत ही small होता है. This gives rise to a low melting and boiling point of these compounds, and this gives rise to what? Low melting point and boiling point. Okay, इसके कारण क्या होता है? अगर हमें पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिस भी स्ट्रक्चर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जहाँ पे भी स्मॉल होता है, ओके, वो क्या हो सकता है? इजीली कन्वर्ट हो सकता है, ओके, इनटू लिक्विड, और लिक्विड से वो वेपर फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, उसका क्या है? लो है, ओके। So since the electrons are shared between the atoms and no charged particles are formed, such covalent compounds are generally poor conductors of electricity. And it is the poor conductor of electricity also. Poor conductors of electricity. Conductors of electricity.
So whatever the bond formation right now we have seen for different hydrogen के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अमोनिया के लिए, ओके मीथेन के लिए, ओके नाइट्रोजन के लिए, और भी जितने भी इसके लिए हम लोगों ने देख लिया अभी, उसमें क्या हुआ है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्मॉल and that's the reason that they will have low boiling point and they have low melting point, and because of which what will happen, they are very poor conductors of electricity.